So we had started with spherical mirrors in the last class. So we had done till spherical mirrors, start of the spherical mirrors, where we studied there are two types of spherical mirrors and important points which were there on the spherical mirrors, like pole of the mirror किसको कहते हैं, center of curvature किसे कहते हैं, radius of curvature किसे कहते हैं, focus किसे कहते हैं. तो ये सारी चीजें हमने पिछली क्लास में देखी थी. Now continuing from there, where we stopped in the last class. So the principal focus of a concave mirror is a point on its principal axis to which all the light rays which are parallel and close to the axis converge after reflection from the concave mirror. So जो parallel light rays reflection के बाद mirror से जिस point पे meet करेगा, so all these parallel light rays after reflection from mirror, they will meet at one particular point. That point is called the focus of the concave mirror. Since all the reflected light rays actually pass through the focus of a concave mirror, and so these are all actual light rays which are passing after reflection. So this focus of a concave mirror is a real focus. Why? Because actual light rays are passing through it. Since a concave mirror converges a parallel beam of light rays, and that's why it is also known as converging mirror. है ना, पैरेलल लाइट रे को एक जगह कन्वर्ज कर दिया, इसीलिए इसको कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं. The focal length of a concave mirror is the distance between its pole and principal focus. It is represented by small f. An image of the sun can be produced by a concave mirror at its focus. तो sun का जो image है वो focus पे दिखेगा by a concave mirror. Now principal focus and focal length of a convex mirror. So अभी concave mirror देखा था, ये convex mirror में क्या है कि the light rays which appear to be coming from after reflection, which appear to be coming from a particular point, that point is called the focus. So the definition says the principal focus of a convex mirror is a point on its principal axis from which the beam of light rays initially parallel to the axis appear to diverge after being reflected. So reflection के बाद ये सारे light rays डाइवर्ज कर रही हैं. अगर पीछे की तरफ इनको एक्सटेंड कर देंगे इन सारे लाइट रेस को, तो ऐसा अपीयर होगा. अगर ऑब्जर्वर यहाँ पे है, अगर ऑब्जर्वर इस तरफ से कहीं पे मिरर मतलब ये देख रहा है, तो उसको सारे लाइट रेज बेसिकली इस पॉइंट से आते हुए दिखेंगे, है ना. सो जिस पॉइंट से ये सारे लाइट रेज डाइवर्ज करते हुए दिखते हैं, वो इसका फोकस हो जाता है कन्वेक्स मिरर का. और बिकॉज कन्वेक्स मिरर में ये लाइट रेज एक्चुअली नहीं मीट कर रही हैं, ऐसा एज्यूम करते हैं कि लाइट रेज यहाँ से आ रही हैं, बट एक्चुअल लाइट रेज डू नॉट go behind the mirror. So that's why in this case, in case of convex mirror, the focus is virtual focus. So in convex mirror we have a virtual focus. In concave mirror we have a real focus. Now, relation between radius of curvature and focal length of a spherical mirror. So this is in fact true for both the mirrors. F is equal to R by 2. So focal length is equal to half the radius of curvature. Now उसी पे based ये questions है कि भाई if radius of curvature of spherical mirror 20 centimeter है, तो F is equal to R by 2 10 centimeter हो जाएगा. Similarly, फोकल लेंथ ऑफ ए मिरर यहाँ निकालना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 25 सेंटीमीटर है, तो F इज इक्वल टू 25 बाई 2 12.5 सेंटीमीटर हो गया. उसी तरह इफ द फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर इज 25, व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर? R is equal to 2F. This will give you 50 centimeter. Find the focal length of a concave mirror whose radius of curvature is 32. So F is equal to R by 2, that is 32 by 2, 16 centimeter. Now rules for obtaining, तो कोई भी concave mirror में जो image बनता है उसको बनाने के लिए we need at least two light rays, two reflected rays. So those two reflected rays, which rays to use, there are certain rules through which, by which we can make certain principal rays basically, and using those principal rays we basically make the
image here. So first rule says that any light ray which is, so for this is for concave mirror we are doing. So any light ray which is parallel to the principal axis after reflection passes through the focus. तो जो भी light ray प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा वो रिफ्लेक्ट करके हमेशा ही फोकस से पास करेगा. ये पहला रूल हो गया. सेकेंड रूल इसी का इस सेकेंड रूल ये कहता है कि लाइट रे which is passing through the center of curvature, the incident light ray which is passing through the center of curvature after reflection rebounds back in the same path. So a ray of light passing through the center of curvature of a concave mirror is reflected back along the same path. Third one is a ray of light passing through the focus of a concave mirror becomes parallel to the principal axis after reflection. So ray of light which is passing through the focus becomes parallel to the principal axis. तो पहले वाले का उल्टा है थर्ड वाला. फोर्थ कह रहा है कि a ray of light which is incident at the pole of a concave mirror is reflected back making the same angle with the principal axis. तो पोल पे ये प्रिंसिपल एक्सिस एक नॉर्मल के तरह एक्ट करता है. सो इट इज अ नॉर्मल. सो यहाँ पे टेंजेंट जो बनाएंगे उससे परपेंडिकुलर, दिस इज अ नॉर्मल. सो ये जो नॉर्मल होगा, नॉर्मल से जितना एंगल इंसिडेंट रे बनाएगा उतना ही एंगल रिफ्लेक्टेड रे बनाएगा. तो पोल पे जो रिफ्लेक्शन होता है वहां एंगल I इज इक्वल टू एंगल R होगा. सो दैट्स व्हाट इज बीइंग सेड हियर. अ रे ऑफ लाइट व्हिच इज इंसिडेंट एट द पोल ऑफ ए कनकेव मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक मेकिंग द सेम एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस. Now formation of different types of images by concave mirror. So the type of images formed by concave mirror depends on the position of object in front of the mirror. It can place the object at different positions from, so we can place a object at different positions from concave mirror to get different types of images. तो हम लोग क्या करते हैं, ये ऑब्जेक्ट को अलग अलग पोजीशन पे रखते हैं और उससे हम अलग अलग इमेज फाइंड आउट करते हैं. तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, राइट, कि इफ द ऑब्जेक्ट इज लाइंग बिटवीन द पोल एंड द फोकस, देन पहला लाइट रे, द लाइट रे विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ, एंड द लाइट रे है ना एट द पोल जितना एंगल बना रहा है उतना एंगल इधर भी बना के ये रिफ्लेक्ट करेगा. अब ये वाला जो लाइट रे और ये वाला जो लाइट रे, ये दोनों कभी भी मीट नहीं करेगा बिकॉज दे आर डाइवर्जिंग हियर. सो पीछे की तरफ जब एक्सटेंड करते हैं, इधर अगर ऑब्जर्वर है तो ऑब्जर्वर को ये दिखेगा कि लाइट रे इस पॉइंट से आ रहा है. सो इस पॉइंट से ऐसा आ रहा है, मतलब इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज होगा वो वर्चुअल, इरेक्ट है ना, और मैग्निफाइड है. सो द इमेज फॉर्म्ड इज बिहाइंड द मिरर, वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, जिसको मैग्निफाइड भी कहते हैं. दिस एक्सप्लेन्स द यूज ऑफ कनकेव मिरर एज शेविंग मिरर. कनकेव मिरर को हम लोग शेविंग मिरर में यूज करते हैं. डेंटिस्ट इसको यूज करता है कनकेव मिरर को. सो दस दिस एक्सप्लेन्स द यूज ऑफ कनकेव मिरर एज शेविंग मिरर. दस while using a concave mirror as a shaving mirror, the face should be close to the concave mirror, है ना. फेस क्या होना चाहिए, फोकस और पोल के बीच में होना चाहिए. और यही वजह है कि जो होटल्स वगैरह में इनफैक्ट वॉशरूम में लगा हुआ होता है शेविंग मिरर, तो वहां पे देखोगे बड़ा साइज का होता है, साइज उसका बहुत बड़ा होता है, एपर्चर उसका बड़ा बनाते हैं जिससे कि उसका फोकस इतने डिस्टेंट पे रहे कि हम लोग दूर भी खड़े हो तो हमारा एनलार्ज इमेज ही दिखे वहां पे. सो डेंटिस्ट यूज कनकेव मिरर टू सी द लार्ज इमेज ऑफ टीथ फॉर एग्जामिनिंग टीथ ऑफ अ पर्सन. सो लार्ज इमेज ऑफ टीथ कैन बी सीन यूजिंग द कनकेव मिरर बाय द डेंटिस्ट. ठीक है. ये लाइट रे जो देखो जो फोकस से पास कर रहा था वो पैरेलल हो गया, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा था बैक हो गया, और इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड कर देंगे तो इमेज यहाँ पे बनता हुआ दिखेगा. Now second case, image formed by a concave mirror when the object is placed at the focus of a concave mirror. So when the object is placed at the focus, a parallel light ray which is coming that passes through the focus, and the light ray which is passing through center of curvature gets reflected back along the same path.
these two light rays which are parallel, these light rays are, so light rays which are reflected, both are parallel, and because they are parallel they will meet at infinity. So image formed is at infinity, है ना, और it will be real and inverted. जो infinity पे image बनेगा that will be below the principal axis. So below the principal axis, that means it is real and inverted and highly magnified, because बहुत दूर जाके कहीं पे बनेगा तो which will be highly magnified, इससे बहुत बड़ा साइज का होगा. Now when a highly magnified, real, inverted and at infinity, this is the characteristics of the image when the object is placed at the focus. So इसका use क्या है? When a lighted bulb is placed at the focus of a concave mirror reflector, the diverging light rays of the bulb are collected by the concave reflector and then reflected to produce a strong parallel sided beam of light. This explains the use of concave reflector in torches, car headlights and searchlights to produce a strong beam of light which produces a considerable distance, which travels a considerable distance in the darkness of night. तो बेसिकली जो हमारे ये रिफ्लेक्टर्स हैं, वो रिफ्लेक्टर्स के फोकस पे हम लोग एक बल्ब लगा देते हैं, है ना, इसको प्लेस कर देते हैं. अब ये बल्ब से जो भी लाइट रे निकल के आ रहा है, ये बिकॉज फोकस से पास होके आ रहा है, तो ये सब क्या हो जाएंगी? प्रिंसिपल फोकस के, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगे. तो लाइट रेज गेटिंग रिफ्लेक्टेड, ठीक है, बाय द कनकेव मिरर. When the bulb is placed at the focus, light ray will become parallel to the principal axis, and hence these parallel beam of lights can help us see a larger distance, see through a larger distance when we are driving a car using the car headlights or in the searchlights or in the torches. क्लियर है यहाँ तक बच्चों? किसी को Yes, पूछना तो sir. नहीं है? सर एक बार फिर से बता दोगे, तो मैं डिस्कनेक्ट हो गया था. हम लोगों का दो केस ले रहे हैं. पहला केस ये लिया था जब हम लोग फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रख रहे थे, तो वहां पे जो इमेज फॉर्म हो रहा था वो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्म हो रहा था और मैग्नीफाइड इमेज फॉर्म हो रहा था. ये सेकंड जो केस है, धीरे धीरे ऑब्जेक्ट को हम दूर करते जा रहे हैं. पहले पोल और फोकस के बीच में था, अब हमने फोकस पे रख दिया. तो ऑब्जेक्ट जो फोकस पे है, लाइट रे, जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे होगा, वो रिफ्लेक्टेड लाइट रे विल ऑल्सो बी पैरेलल. ठीक है. सो बेसिकली आप ये देखिए कि जो पैरेलल लाइट रे है आ रहा था, वो रिफ्लेक्ट होके फोकस से पास कर रहा है, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा था वो डायरेक्टली वापस इधर चला गया. तो ये दोनों लाइट रेज बिकॉज पैरेलल है, तो ये इन्फिनिटी पे मीट करेंगे. इन्फिनिटी पे मीट करेंगे तो इमेज फॉर्म इन्फिनिटी पे हो गया. और बिकॉज रियल साइड में इमेज बन रहा है, रियल है तो हमेशा इन्वर्टेड होगा, रियल एंड इन्वर्टेड. और तीसरा वाला जो इमेज फॉर्म्ड इज हाईली मैग्नीफाइड. ठीक है, बहुत नीचे जाके बनेगा, इसलिए हाईली मैग्नीफाइड. और जो टॉर्चेस हैं, सर्च लाइट्स हैं, है ना, इन सब में, या कार का हेडलैम्प है, उन सब में पीछे एक रिफ्लेक्टर लगा हुआ रहता है, और बल्ब जो है वो हमेशा फोकस पे लगा रहता है. अगर ये नॉर्मल बल्ब को ऐसे जलाते तो इसकी रोशनी हर दिशा में फैल जाती. तो इससे हम लोगों को कॉन्सेंट्रेटेड कोई चीज नहीं दिखता. मतलब लाइट जो है किसी एक पर्टिकुलर एरिया में फॉल करेगा तो ज्यादा इल्यूमिनेशन होगा. तो वैसा करने के लिए हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ पे एक पीछे रिफ्लेक्टर लगा लिया. वो रिफ्लेक्टर जो भी लाइट रे इस पे आ रहा है, वो रिफ्लेक्टर उसको प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बना के रिफ्लेक्ट कर रहा है. ठीक है. So this explains the use of concave reflectors in torches, car headlights and searchlights to produce a strong beam of light which travels a considerable distance in the darkness of night. Sir? Yes? सर जैसे क्वेश्चन पेपर में आता है कि मेक द रे डायग्राम ऑफ व्हेन अ सर्च ऑफ हाउ सर्च लाइट्स आर प्लेस्ड इनसाइड कार्स. तो हम लोग को इसमें मेंशन करना पड़ता है कि बल्ब इधर होता है या इधर रिफ्लेक्टर होता है, वैसे करके लिखना होता है, फिर नॉर्मल रे डायग्राम बना सकते हैं? नहीं, तुम एक्सप्लेन भी करोगे ना उस रे डायग्राम को. तुम पहले लिखोगे कि द बल्ब इज प्लेस्ड एट द फोकस सो दैट द रिफ्लेक्टेड लाइट
which we get is a parallel beam of light parallel to the principal focus, right? उसके बाद फिर ये दो लाइन लिखने के बाद फिर इमेज बनाओगे और यहाँ पे लिखोगे ये फोकस, तो लोगों को समझ में आएगा ये पोल ऐसे करके, ओके सर। है ना? तुमने जो डायग्राम बनाया है उसके बारे में थोड़ा सा लिखोगे तब तो डायग्राम समझ में आएगा कि किस रिगार्डिंग ये डायग्राम बना है। Yes. So in this third case, image formed by a concave mirror when the object is placed between the focus and center of curvature. So when the object is placed between the focus and center of curvature, the light ray which is coming parallel to the principal axis after reflection passes through the focus, and the one which is going through center of curvature will return back on the same path. And in both of this will appear to meet at this point, which is beyond the center of curvature. The image formed is real and inverted and larger than the object. It is magnified. A real image is always inverted and a virtual image is always erect. तो आप ये देखिए जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखा है, जो पैरेलल लाइट रे है वो पास कर रहा है फोकस से, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा था वापस इसी के अलॉन्ग आ गया, ये दोनों इस पॉइंट पे मीट के तो पॉइंट ए का जो इमेज है ए डैश पे बन गया। तो अब हम लोग एक यहाँ पे परपेंडिकुलर प्रिंसिपल एक्सिस के बना देते हैं, तो ये इमेज हो गया इस ऑब्जेक्ट ए बी का। सो ए डैश बी डैश इज द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ए बी. So the image formed is beyond the center of curvature, real and inverted and larger than the object. Now real image is always inverted and virtual image is always erect. तो real क्या है? हमेशा inverted है. Real is always inverted and virtual is always erect. Next case, when the image formed by a concave mirror when the object is placed at the center of curvature. So जब object center of curvature पे है तो image भी center of curvature पे ही बनता है. Real inverted same size as the object and at center of curvature only. So आप ये देखिए जो light ray पैरेलल आ रही थी सेंटर ऑफ कर्वेचर सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस के, वो फोकस से पास कर गई. जो फोकस से पास करते हुए लाइट थी वो पैरेलल होके इस पॉइंट पे मीट करी. तो ए बी जो ऑब्जेक्ट है उसका इमेज ए डैश बी डैश बन गया. ठीक है. सो इमेज फॉर्म्ड इज एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर. सो इमेज फॉर्म्ड इज एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, रियल एंड इन्वर्टेड, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट. Fifth case, when the object is placed beyond the center of curvature, then the image formed is between center of curvature and focus. और यहाँ पे जो है the size is smaller than the object. ठीक है. So smaller than the object, the size of image is smaller than the object. It is real and inverted and between focus and center of curvature. So just opposite to the third case. थर्ड केस में हम लोग क्या कर रहे थे, जब सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट था तो इमेज बियॉन्ड सी था, और यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है तो इमेज सी और एफ के बीच में होगी. ठीक है. वहां पे इमेज मैग्निफाइड बन रहा था, यहाँ पे डिमिनिश्ड बन रहा है. So the parallel light ray to the principal axis passes through the focus. The one which is passing through the center of curvature returns back along the same path. Both of this, ठीक है, ये जो लाइट रे और ये लाइट रे इधर तो मीट करेगा नहीं. इसको जब बेसिकली जो रिफ्लेक्शन के बाद ये दोनों यहाँ पे मीट कर रहे हैं तो ये जो ए बी है ये यहाँ पे ए डैश बी डैश इमेज बना रहा है. सो यहाँ पे जो इमेज है बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, रियल एंड इन्वर्टेड एंड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, विच इज ऑल्सो कॉल्ड डिमिनिश्ड इमेज. Now image formed by a concave mirror when the object is at infinity. So when the object is at infinity, the image formed is at the focus and a point size image. तो यहाँ पे देखो ये ए बी पूरा जो ऑब्जेक्ट है
सो जो लाइट रे पैरेलल आ रहा है वो फोकस पे जाके मीट कर दे रहा है, तो इमेज जो फॉर्म हो रहा है इस ऑब्जेक्ट ए बी का, दैट विल बी एट द फोकस एंड दैट विल बी पॉइंट साइज्ड इमेज. सो द इमेज फॉर्म्ड इज एट द फोकस, रियल एंड इन्वर्टेड. फोकस पे है, रियल साइड में है, तो रियल एंड इन्वर्टेड होगा. हमेशा रियल है तो हमेशा इन्वर्टेड होगा. Much smaller than the object or highly diminished. So the size of the object is much smaller than the object and it is highly diminished. So when the yes, सर अगर किसी और गाड़ी का लाइक हेडलाइट से दूसरी गाड़ी के हेडलाइट में जाएगा तो कुछ इफेक्ट पड़ेगा कि वो पैरेलल लाइट्स होंगी और वो कन्वर्ज होंगी, तो सर हमें कुछ दिखेगा उसमें? ये हमारे आंखों पे जब वो पैरेलल बीम ऑफ लाइट उनके मतलब सामने वाली गाड़ी से आता है, देन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सी. बट ऐसा दो लाइट ऐसे मिलके कुछ नहीं बनता है. नहीं सर, जैसे मतलब नॉर्मल एक गाड़ी खड़ी है विद रिफ्लेक्टर्स बिना हेडलाइट चढ़े हुए और दूसरी गाड़ी की हेडलाइट उस वाली हेडलाइट्स में आती हैं. हाँ, तब फिर होता है कि तुम अचानक से तुमको ग्लो करता हुआ दिखे. जैसे गाड़ियां खड़ी हैं अंधेरे में पार्किंग लॉट्स में, और जब आपकी गाड़ी की हेडलाइट जब उनके रिफ्लेक्टर्स पे पड़ती है तो अचानक से चमक जाती है ना. तो वो जो ब्राइटनेस अचानक से आती है, दैट इज बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन, और उससे मतलब यू विल फील दैट ब्राइटनेस. तो पूरी गाड़ी नहीं दिखेगी तुमको उतने ब्राइट जितनी की वो दो गोले जहाँ पे कि और वहाँ पॉइंट्स आ जाते हैं, हेडलैम्प्स जहाँ पे होगा वहां पे तुमको वो पूरा ग्लो करता हुआ दिखेगा पूरा हेडलैम्प. यस सर. ओके, सो इमेज फॉर्म्ड ये तो हमने कर लिया था. सो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, इसका जस्ट ऑपोजिट है. जो ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे तो इमेज फॉर्म्ड इज एट इंफिनिटी, एंड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी इमेज फॉर्म्ड इज एट फोकस. सो यहाँ पे सेम चीज है. तो when the object is at focus the image formed is at infinity, and when the object is at infinity image formed is at the focus of a concave mirror. This means that a concave mirror can concentrate all the parallel rays of light to its focus. This explains the use of concave mirror as a head mirror by the doctor to concentrate light on body parts like eye, throat, etc. तो ये भी एक यूज है concave mirror का, जहाँ पे head mirror के फॉर्म में यूज होता है concave mirror. और यहाँ पे क्या है, जो भी पैरेलल लाइट रेज मतलब पूरे कमरे में जो भी रोशनी है वो सारे लाइट्स जो है इस हेड मिरर के ऊपर आता है. और वो लाइट रे बिकॉज सारे इंफिनिटी से आएगा, बिकॉज मतलब जो जहाँ पे लाइट लगी है वो काफी डिस्टेंस पे है, मतलब बिल्कुल पास में नहीं है. तो जो डिस्टेंस पे से लाइट रेज कभी भी आएगा वो पैरेलल लाइट रे ही आएगा, और वो कन्वर्ज करेगा एक पॉइंट पे. जिस पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा वहां पे हम लोग बेसिकली जो भी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं बॉडी पार्ट को, वो उसके फोकस पे, उस हेड मिरर के फोकस पे थोड़ा आगे पीछे अपने हेड मिरर को शिफ्ट करेंगे, और उससे फिर हम लोगों को वहां पे लाइट अच्छे से पड़ेगी और हम उसको देख पाएंगे उस ऑब्जेक्ट को. हाँ पुलकित बोलो, क्या बोल रहे हो? सर जैसे सन की रेज आके वो मतलब हीट कर देती हैं पूरा ऐसे, तो सर ऐसे अगर हम किसी जैसे मान लो सर आईज में देखते हैं कई बार, जैसे मतलब ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, तो वो सन की लाइट नहीं से नहीं देखेंगे हम लोग. ये कूल लाइट्स जो है हमारे रूम के अंदर, उससे अगर सन वाले से कर देंगे तब तो बस हो गया, उसका परमानेंट इलाज हो जाएगा आईज का. तो फिर सर इन वाले से कोई फर्क नहीं पड़ता नॉर्मल इन ट्यूबलाइट? वाले से नहीं फर्क पड़ेगा ना, इनमें वो इंफ्रारेड लाइट रेज नहीं रहती है इन सब में ज्यादा, तो हीटिंग इफेक्ट उतना नहीं होता है इन सब. बट सर अगर किसी ने लाइक खुले में बैठ के कर दिया हेड में, बस हो जाएगा परमानेंट इलाज, बोला तो मैंने. फिर वो ना आंख बचेगा ना इलाज का जरूरत होगा जीवन में कभी. yes, sir. So that will be very dangerous. So गांव में पता चला कोई डॉक्टर नया नया वही सर, हाँ कर दिया काम उसने. क्या पता होता भी होगा, हमें तो नहीं पता. वही सर मेरे को दिमाग में सर हो सकता है कोई खुले में करता हो मतलब सनलाइट के अंदर. तो बिल्कुल बिल्कुल. चलिए नेक्स्ट. तो ये सारा जो है जो अभी हम लोगों ने जितना भी किया वो एक जगह समराइज्ड है कि जब ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट अलग अलग लिखा हुआ है, कहाँ कहाँ पे रखेंगे तो पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ होगा, और साइज ऑफ इमेज अकॉर्डिंगली कैसा होगा, नेचर ऑफ इमेज क्या होगा. तो दिस इज द सेम थिंग विच वी हैव डन इन द प्रीवियस स्लाइड्स. नाउ यूजेस ऑफ कनकेव मिरर, हम लोग फर्स्ट पोजीशन से ही पढ़ते जा रहे हैं. कनकेव मिरर का यूजेस, पहला यूज था
जब concave mirror are used as reflectors in torches, vehicle headlights, जब ऑब्जेक्ट को फोकस पे हमने रखा है ना, तो वहां पे देखो रिफ्लेक्टर की तरह यूज हो रहा है, व्हीकल के हेडलाइट्स और सर्च लाइट्स में ये सब यूज होता है। कनकेव मिरर आर यूज्ड एज सेविंग मिरर्स, ये हम लोगों ने देखा था, जब फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट रहता है तो एनलार्ज इमेज बनता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। कनकेव मिरर आर यूज्ड बाय डेंटिस्ट अगेन, तो जब वो इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट रहता है तो जो इमेज है, मतलब जो बेसिकली हम लोग सारा लाइट कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं फोकस पे, उस प्रिंसिपल को यूज करेंगे। Large concave mirrors are used in the field of solar energy to focus sun's rays for heating solar furnaces. In fact, solar cookers में भी फ्राई करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। सोलर फर्नेसेस हैं, यहाँ पे बेसिकली मेटल्स को मेल्ट करने के लिए भी यूज होता है। लार्ज कनकेव मिरर, बड़े बड़े कनकेव मिरर्स लगे हुए रहते हैं, उससे जो लाइट रे आएगा कन्वर्ज होके बहुत ज्यादा हीट होता है, और वहां पे मतलब it produces so much of heat कि even metals can be melted out of that heat. Fifth वाला है concave mirror is used as head mirror by doctors to concentrate light on body parts like throats, eyes, etc. to be examined. हाँ जी पुलकित बताइए। जैसे आपने अभी ये सोलर कुकर्स का बताया, तो सर इस चैप्टर से सर बहुत सारा केस स्टडी वाला आ सकता है, तो आप कुछ क्वेश्चन बता सकते हैं कि मतलब केस स्टडी। अच्छा चलो मैं देख लूंगा एक बारी, मैं पूरा चैप्टर ही एक बार ब्रीफ में बता दूंगा, जिससे कि तुम लोग केस स्टडी में तुम लोग को आंसर्स लिखना ज्यादा आसान रहे। ठीक है सर, क्योंकि इसमें केस स्टडी का बहुत सारा वो है। नहीं तो इन्होंने बोला है कि इस चैप्टर से केस स्टडी देंगे ऐसा? नहीं सर, मतलब ओवरऑल आएगा, मतलब किसी से भी आ सकता है, बट लाइक इसमें थोड़ा ज्यादा वो है चांस। चलो I'll go through that thing. थैंक यू। Now rules for obtaining images formed by convex mirrors. So देखो कन्वेक्स मिरर्स में यही जो रूल्स हैं, यहाँ पे भी 4 रूल्स हैं। ये रूल्स, पहला रूल क्या कहता है, जो पैरेलल लाइट रे आता है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो इस तरह से डाइवर्ज करेगा कि इट विल अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम द फोकस एफ। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल, लाइट रे विच इज गोइंग टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन goes back in the same path. Third rule says a ray of light going towards the focus of a convex mirror becomes parallel. So the one which is going towards the focus, this after reflection becomes parallel to the principal axis. Fourth one is a ray of light which is incident at the pole. The angle which it makes with the principal axis is same as the angle which the reflected ray makes with the principal axis. Now, formation of different types of images by convex mirror. So, whatever be the position of object in front of a convex mirror, the image formed by a convex mirror is always behind the mirror. It is virtual, erect and smaller than the object or diminished. So, कहीं पे भी object को आप रखो, है ना, यहाँ पे when an object is placed anywhere between pole and infinity, you will find that the image is formed between the pole and the focus only, behind the mirror. It is virtual, erect and diminished. So we can see that a light ray, first a light ray which is parallel, after reflection it appears to pass through the focus when it is extended backward. Similarly, a light ray which is going towards the center of curvature of this convex mirror reflects back along the same path. ये दोनों लाइट रे जो है ये तो डाइवर्ज कर रही हैं, इनको पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो इट विल अपीयर टू मीट एट दिस पॉइंट। तो यहाँ पे जो इमेज बनता है उस इमेज को, दिस इज वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। सो इमेज फॉर्म्ड इन अ कन्वेक्स मिरर इज बिहाइंड द मिरर, वर्चुअल एंड इरेक्ट, है ना, बिहाइंड द मिरर बिटवीन पोल एंड फोकस, वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। Now, when a ray of light is at infinity from a convex mirror, तो यहाँ पे the image formed is at the focus, point size image बनता है, highly diminished. So the image formed is behind the mirror at focus, virtual and erect, and highly diminished.
Now third case, image formed by a concave mirror when the object is placed between the focus and center of curvature. तो ये देखो ऑब्जेक्ट जो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है, ये दूसरा आ गया, ये रिपीट हो गया, आई एम सॉरी, दिस वी हैव ऑलरेडी डन. Yes. So this is, the summarized portion. When the object is at infinity, then the image is at focus, highly diminished and point size, virtual and erect. And when the object lies between between infinity and pole of the mirror, anywhere between infinity and pole, the image formed is between P and F, pole and focus. It is diminished and virtual and erect. Uses of convex mirrors, सबसे जो important use है, convex mirror are used as rear view mirrors in vehicles, ठीक है, like cars, trucks and buses, to see the traffic at the rear side, the back side. So a driver prefers to use a convex mirror as rear view mirror. ये काफी important question है, बहुत पूछा जाता है. Why do we use convex mirror as rear view mirror? First is it always produces an erect image. Second, because the image formed is diminished, so field of view is wide. So the image formed in a convex mirror is highly diminished or much smaller than the object, due to which convex mirror gives a wide field of view of the traffic behind. And then that's why we are able to see the whole width of the road when we are driving. Now, sign convention for spherical mirrors. So basically हम लोग mirror formula से questions जो numerical solve करते हैं, उसके पहले sign convention जानना जरूरी है. यहाँ पे in spherical mirrors, new Cartesian sign convention we use as a sign convention. So a new Cartesian sign convention क्या कहता है कि all the distances are measured from the pole of the mirror, and the pole of the mirror is considered as the origin here. And the distances, whether it is concave mirror or it is convex mirror, the distance is always measured from the pole of the mirror. ठीक है, और ठीक है, उसके अलावा देखिए, anything which is measured to the right of the pole is positive, the distance measured to the left of the pole is negative. So इसको ये भी कर सकते हैं कि इंसिडेंट रे का जो डायरेक्शन होता है वो पॉजिटिव होता है और ऑपोजिट टू इंसिडेंट रे जो है वो नेगेटिव हो गया. All distances measured above the principal axis is positive and all distances measured below the principal axis is negative. Same is true for this convex mirror also. Convex mirror में भी इधर positive, इधर negative, ऊपर positive और नीचे negative. So this is what is the sign convention of mirror, spherical mirror. Now there are certain rules which you should always remember, that object is always placed on the left. ठीक है, तो object is always placed on the left, so u is always negative, right? So object is always placed in the left. ठीक है, तो u is equal to, u is always negative first. Second, जो image distance होगा वो इस पे डिपेंड करेगा कि रियल इमेज फॉर्म हो रहा है या वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रहा है. हमें पता है कि जो रियल इमेज है दैट इज ऑलवेज ऑन द लेफ्ट साइड ओनली. सो इमेज डिस्टेंस अगर रियल इमेज बन रहा है तो नेगेटिव होगा इमेज डिस्टेंस, अगर वर्चुअल इमेज बन रहा है तो दैट विल बी बिहाइंड द मिरर. सो द वर्चुअल इमेज, इन केस ऑफ वर्चुअल इमेज द इमेज डिस्टेंस इज पॉजिटिव. Third,
फोकल लेंथ की बात करते हैं. So there are two types of mirror. One is called concave mirror and other is called convex mirror. ठीक है. तो concave, हाँ जी बोलो. अब फोकस जो कनकेव मिरर में है, बिकॉज ये कनकेव मिरर का जो फोकस है लेफ्ट साइड में लाई करेगा, तो यहाँ पे फोकल लेंथ का कनकेव, जो फोकल लेंथ कनकेव मिरर में नेगेटिव होगा. कन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ राइट साइड, फोकस राइट साइड में होता है, तो फोकल लेंथ जो है यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा. फोर्थ पॉइंट जो हम लोग यहाँ पे नोटिस करते हैं कि जो मैग्निफिकेशन है, अच्छा उसके अलावा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमेशा हम इरेक्ट रखते हैं, है ना. ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड इन द लेफ्ट एंड इरेक्ट, ऑलवेज इरेक्ट, है ना. ऑब्जेक्ट को उल्टा करके नहीं रखेंगे. हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव, राइट. और हाइट ऑफ इमेज की बात करें, सो अगर ये रियल है तो इन्वर्टेड होगा. सो रियल एंड इन्वर्टेड हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव लेंगे. और जब वर्चुअल इमेज बन रहा है, वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट होता है, तो उस केस में यहाँ हाइट ऑफ इमेज इज पॉजिटिव. सिक्स्थ पॉइंट मैग्निफिकेशन, इसी से आ जाता है. मैग्निफिकेशन अगर ये रियल इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रहा है, सो रियल एंड इन्वर्टेड के केस में मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट के केस में मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव. ठीक है. सो मैग्निफिकेशन हो गया, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. इसके अलावा एक जनरल फैक्ट है कि अगर मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 है, जो मैग्निफिकेशन का एब्सोल्यूट वैल्यू ले लो, इफ इट इज ग्रेटर देन 1, देन द इमेज फॉर्म्ड इज bigger than the object. So magnification greater than 1, that means magnified image is formed. And when the magnification is less than 1, in that case diminished image is formed. Is this clear, bachcho? यस सर. सर आज तक कभी ऐसा क्वेश्चन आया कि इमेज ऑब्जेक्ट को उल्टा रखा है? नहीं ऐसा नहीं आता. तो वही सारी चीज जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे वो यहाँ पे भी लिखा है कि भाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है हमेशा हम लोग नेगेटिव लेते हैं. इफ एन इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द कनकेव मिरर, द इमेज डिस्टेंस v इज पॉजिटिव. बिहाइंड कब होगा? जब वर्चुअल इमेज फॉर्म करेगा. इफ द इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट, है ना, ऑन द लेफ्ट साइड, देन द इमेज डिस्टेंस विल बी नेगेटिव. इमेज डिस्टेंस v ऑफ ए कन्वेक्स मिरर, है ना, कन्वेक्स मिरर में हमेशा वर्चुअल इमेज बनता है, तो v हमेशा पॉजिटिव होगा. The focus of a concave mirror is in front of the mirror on left side. So focal length of concave mirror के केस में focal length is negative. On the other hand, the focus of the convex mirror is positive. The height of an object is always considered positive. ठीक है ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमेशा हम लोग अपराइट रखते हैं. फिर if an image is formed above the principal axis, its height is taken as positive, and if the image is formed behind the principal axis, below the principal axis, its height is taken negative. The image of all the virtual and erect image is considered positive, height of all real and inverted image is taken as negative. वही जो चीज डिस्कस किया था. अब दो फॉर्मूलेज होते हैं, एक मिरर फॉर्मूला है और एक मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है. मिरर फॉर्मूला कहता है 1/v + 1/u is 1/f. v यहाँ पे इमेज डिस्टेंस है,
u जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और f जो है फोकल लेंथ है, ठीक है। और इनमें जो भी वैल्यूज नोन होते हैं उनको उसके साइंस के साथ लिखते हैं, जो अननोन होता है उसको उसका साइन जो हम लोग कैलकुलेशंस करेंगे उससे अपने आप आ जाएगा। तो जो नोन वैल्यूज हैं उन्हीं के साथ साइन हम लोग पुट करते हैं, अननोन का साइन अपने आप सॉल्व करके आता है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखने की बात। मैग्निफिकेशन का दूसरा फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सो मैग्निफिकेशन इज height of image by height of object, which is equal to minus of v by u. ठीक है, तो v और u में भी मैग्निफिकेशन का एक रिलेशन है जिसमें हम लोग कहते हैं मैग्निफिकेशन h dash by h is minus of v by u। एक ये क्वेश्चन भी काफी आता है कि बिना टच किए हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे कि ये कनकेव मिरर है, कन्वेक्स मिरर है या फिर प्लेन मिरर है। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने फेस को मिरर के पास लेकर आते हैं। अगर पास लाने में हमारा फेस जो है बड़ा दिखता है तो इसका मतलब ये कनकेव मिरर है। अगर पास लाने से वो छोटा दिखता है तो मतलब कन्वेक्स मिरर है। और अगर सेम साइज का रह जाता है ना, एज द ऑब्जेक्ट, तो उस केस में हम लोग उसको कहते हैं कि ये प्लेन मिरर है, ठीक है। So we can distinguish between these mirrors just by looking into them. By bringing our face closer to each mirror turn by turn, a plane mirror will produce an image of the same size as our face, and we'll look our normal self. A concave mirror will produce a magnified image and our face will look much bigger. A convex mirror will produce a diminished image and our face will look much smaller. Now let us do some questions here. जैसे पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वेक्स मिरर। देखो कन्वेक्स मिरर दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव होता है तो u इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर लिखेंगे। और कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ जो है ना, ये पॉजिटिव होगा तो प्लस ऑफ 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर समझ में ना आए तो डायग्राम बना के समझ लो कि ये हमारा कन्वेक्स मिरर है, इसका फोकस कहीं इधर है तो फोकल लेंथ यहाँ पे जो है राइट साइड में होगा, पोल के मतलब पॉजिटिव है। सो f इज इक्वल टू प्लस 15 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज। मिरर फॉर्मूला लिखेंगे 1 by v plus 1 by u is 1 by f। 1 by v plus 1 by -10 is equal to 1 by 15, ठीक है। So which is equal to 1 by v is 1 by 15 plus 1 by 10। LCM ले लेते हैं 60, 15 4s are 10 6 are 10 upon 60 1 upon 6। So v is equal to plus of 6 centimeter, है ना। So image formed is behind the mirror at 6 centimeter, behind the mirror 6 centimeter from the pole। It is virtual, कन्वेक्स मिरर है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बिहाइंड द मिरर बन रहा है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट और डिमिनिश्ड होगा। हाँ जी सर क्या बोलते हैं सर, रियल एंड इन्वर्टेड नहीं होगा? क्यों रियल एंड इन्वर्टेड होगा? v का वैल्यू पॉजिटिव आया ना, पॉजिटिव का मतलब इधर बनेगा ना, वर्चुअल साइड बनेगा ना, ऑब्जेक्ट तो इधर रखा हुआ है। कन्वेक्स मिरर में तो ऐसे भी रियल एंड इन्वर्टेड कभी नहीं बनेगा। हाँ ठीक है सर, मैंने एक छोटी यहाँ गलती रखा है, u का वैल्यू इस डायरेक्शन में नेगेटिव लेते हैं और इधर पॉजिटिव लेते हैं। v का वैल्यू क्या आ रहा है? +6 आ रहा है। +6 आने का मतलब क्या हुआ? इमेज यहाँ पे कहीं बन रहा है। यस सर। है ना, तो इधर बन रहा है तो ये तो बेसिकली तुम्हारा जो वर्चुअल साइड हुआ ना, इधर मिरर के बैक वाला पोर्शन वर्चुअल हुआ और इधर वाला पोर्शन रियल हुआ, ये रियल साइड हुआ। लाइट रे रिफ्लेक्ट करके ऐसे इधर जाएगा। ओके सर। इधर तो एक्चुअल लाइट रे एग्जिस्ट नहीं करेगा।
क्लियर है सभी बच्चों को? Yes, sir. यहाँ पे इस क्वेश्चन में हम लोग को बोल रखा है ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो देखो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ, हमेशा पॉजिटिव लेते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो +5 सेंटीमीटर लिखेंगे। और कहाँ पे रखा है? 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स मिरर, तो यू तो हमेशा नेगेटिव होता है, -20 सेंटीमीटर। और कन्वेक्स मिरर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इसमें पॉजिटिव होगा, +30 सेंटीमीटर, है ना। कन्वेक्स मिरर है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं इधर है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पे पॉजिटिव होगा, +30। F इज इक्वल टू R/2, 30/2 इज इक्वल टू +15 सेंटीमीटर। अब हम लोग मिरर फॉर्मूला लिखते हैं, 1/V + 1/U इज 1/F, 1/V minus 1/20 is equal to 1/15. 1/V is 1/20 plus 1/15. 60 किया तो 23 जा 15 4 जा, ठीक है। So this is 7/60 और V is equal to 60/7, 84/7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब ये हमें इट्स नेचर एंड साइज हम लोग को बताना है, तो नेचर तो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा और डिमिनिश्ड होगा। साइज निकालने के लिए मैग्निफिकेशन इज हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज -V/। अब ये यूज करते हैं, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज minus of 60/7 divided by U is -20, minus कट गया, 23 times height of image is 3/7 into height of object 5 हो गया, 15/7, 1/7 सेंटीमीटर। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. सबको आ गया समझ? सर आपने 5 से क्यों मल्टीप्लाई किया कहाँ पे? हाइट ऑफ इमेज को? ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट था ना, ये जाके इधर मल्टीप्लाई होगा ना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट +5 है ना। ओके सर। ये 5 जो है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, मल्टीप्लाई। ओके सर। क्लियर बच्चों? Yes, sir. अब एक क्वेश्चन हम करेंगे जिसमें बस मैग्निफिकेशन होता है। इस तरह का क्वेश्चन ना काफी पूछा जाता है। सो अ कनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 times मैग्निफाइड रियल इमेज, तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू, रियल इन्वर्टेड होगा तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा, और 3 times बना रहा है, मतलब मैग्निफिकेशन 3 हो गया, उसका जो वैल्यू हो गया m इज इक्वल टू -3 हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं समझ में आता, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट, तो हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 3, यहाँ पे 3 टाइम हाइट ऑफ इमेज क्या बोल रहा है, 3 times हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 3 हो जाएगा। नेगेटिव साइन इसलिए देते हैं क्योंकि रियल इमेज बन रहा है तो इन्वर्टेड होगा, ठीक है ना। सो एनीवेज मैग्निफिकेशन -3 हो गया, हमें पता है -V/U इज इक्वल टू -3, ये कैंसिल हो गया, मतलब V इज इक्वल टू 3, ये फर्स्ट इक्वेशन। अब मिरर फॉर्मूला 1/V + 1/U इज इक्वल टू 1/F of an object placed 10 centimeter in front of it, ठीक है। सर तो सीधा V निकल जाएगा ना, -30। हाँ, इसमें नहीं यूज हो रहा है, मुझे लगा कि वो इक्वेशन बनता है, ठीक है। सो U इज इक्वल टू, यहाँ पे उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा, U इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर कर लेंगे, तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन
v बाय यू माइनस v बाय यू जो -3 आया है उससे माइनस माइनस कैंसिल करके v इज इक्वल टू 3 इंटू -10 -30 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है वेयर इज द इमेज लोकेटेड, सो 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ठीक है, यहाँ पे वो यूज नहीं हुआ है, बट एक और क्वेश्चन हम कर लेंगे जिसमें कि यूज होता है। लेट मी जस्ट फाइंड इट आउट। उसमें इक्वेशन बना के डालना होता है, फिर u की वैल्यू निकाल के v। फिर आई गेस वो डेंटिस्ट वाला था। एक मिनट, ये so how far an object should be placed from a pole of a concave mirror of focal length f is equal to, concave mirror है, focal length negative होगा -20 centimeter, forms a real image whose size is 1/5 the size of the object. So that means magnification is equal to, real है inverted होगा तो -1/5 हो गया, magnification मतलब -v by u is -1/5, so v is equal to u upon 5 और u इज इक्वल टू 5v। ठीक है, सो अब हम लोग यहाँ पे 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f में u के जगह v पुट कर लेते हैं तो 1/, ठीक है, या v इज इक्वल टू u/5 था ना, वही यूज करो, तो 1/u/5 प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। सो ये u/5 5 ऊपर चला जाएगा, 5/u प्लस 1/u is -1/20, 6/u is -1/20। ठीक है, और u इज इक्वल टू ये देखो 20 इंटू 6 -120 हो गया। सर मेरा -24 है। मैंने कुछ गलत किया होगा, एक मिनट। 5 + 1 6/u। सर मैंने u को 5v से रिप्लेस कर दिया, उससे थोड़ा ज्यादा इजी हो गया। u को 5 भी करोगे तो v का वैल्यू आया ना, उससे फिर u का वैल्यू तुमको निकालना पड़ेगा ना। यस सर। तो ये 5v कर दिया तुमने, तो ये 5v हो गया, ये अच्छा हाँ ठीक है ठीक है। by 5v is 1/, यस सर समझ गया सर। तो मेरी v की वैल्यू निकली थी, वो उसको 5 से मल्टीप्लाई करना था, -120। ठीक है बच्चों, आज यहीं पे रुकेंगे और इसके आगे लेंस वगैरह और जो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस से, जो प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस से जो हम लोग रिफ्रैक्शन देखते हैं वो सब नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसके आगे। ठीक है, सो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस ऑल दीज क्वेश्चंस व्हिच आर